Having done the notice now, we move to the next part of our understanding of language as prescribed in your course, and that is letters. Letters. You might be wondering, what is there in the letter? But don't forget that letter also has a standard format. You see this letter? Looks very standard. There is some procedure. And there are many types of letters. We will try to understand them one after the other. But before we go, let us try to understand what a letter means to us. A letter is a means of communication between two people. And particularly, it is a written means of communication. A letter is a written means of communication. एक लिखित जरिया है एक दूसरे से संवाद का, एक दूसरे से बातचीत का एक लिखित जरिया है. And it is written by one for the other person, not for public. Letters are never public. It may be a different thing that I might make your letter public. हो सकता है कि आपने मुझे चिट्ठी लिखी और मैंने उसे पब्लिक को दिखा दिया. But actually the letter was written to me by you. So one person writes to another person, not for public purpose. Right? That is what is letter. And it is a written communication. और ये लिखित संवाद है. Now let's come to the types of letters. When we talk about types of letters, it has many varieties. Like ads have many varieties, notices have many varieties. So is the case with letters. Broadly speaking, we can say that there are two types of letters. One is business letters and second is official letter. Business letter and official letter. But then third and fourth type also are common these days. Third is the letter to editor and fourth is the application for jobs. Applications are also letters, that means. What you need to understand is आवेदन भी चिट्ठी ही होती हैं. Applications are also letters. Application for appointment, application for job, application to bring something and so on and so forth. ये भी लेटर ही कहलाएंगे, पत्र ही कहलाएंगे. So first is business letter. Business letter, what is the type of business letter? What type of business letters are there? First is, we can say that it is for placing order. Second is for enquiries. Third is for placing order, as I said, and so on and so forth. Fourth is for cancelling order, and so on and so forth. So for enquiries is something very important. Second is for replying. Third is for ordering and cancelling. And they can be further subdivided. Replying to whom? That can also be different type. But mostly business letters are in the nature of enquiries. Enquiry मतलब सवाल. सवाल किस तरह का? क्या इंक्वायरी? बिजनेस लेटर में यदि मुझे बिजनेस लेटर लिखना है आपको या किसी एक व्यापारी को बिजनेस से संबंधित है तो मैं लिखूँगा कि प्लीज़ लेट मी नो द फॉलोइंग, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आइटम, सो ऑन सो फोर्थ. और या कुछ बात हो गई हो बिजनेस से संबंधित उसको वहाँ लिखूँगा. सो एनक्वायरीज, रिप्लाइंग, order cancellation and order placing and such matters related to business, व्यापार, धंधा, काम के. बिजनेस लेटर मतलब काम के, किसी स्पेसिफिक पर्पस से जो आपको लिखा जा रहा है वो बिजनेस लेटर. एंड सेकंड टाइप, एज आई सेड, आर ऑफिशियल लेटर.
ऑफिशियल लेटर्स क्यों रहते हैं? आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर्स में क्या रहता है? या तो रिक्वेस्ट रहती है, मैं कलेक्टर को लिखता हूँ या मैं प्रिंसिपल को लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? प्रिंसिपल से कुछ अनुरोध करूँगा, I request you to please grant my son half day leave and permit me to take him home. ये रिक्वेस्ट हुआ। ऐसी रिक्वेस्ट के अलावा ऑफिशियल लेटर में अपील भी होती है। I appeal to you to kindly allow my son so and so. It's an appeal, अनुरोध। एक तो हो गया रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब, और एक हो गया अपील, अपील मतलब अनुरोध। इसके अलावा जो तीसरा जो लेटर होता है वो होता है एक कंप्लेंट का, शिकायत का, कि हम शिकायत कर रहे हैं कि ये मेरे द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है कि आपके यहाँ ऐसा 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 हो रहा है, गलत काम हो रहा है, या ऐसी ऐसी घटना हुई है, या आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस शिकायत का निराकरण करें। सो ऑफिशियल लेटर्स आर आइदर अपील और दे आर रिक्वेस्ट और दे आर कंप्लेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आधिकारिक होगा। The third type of letters, as I said, are the letters to editors. एडिटर मतलब पत्रिका या न्यूज़पेपर के संपादकों को जो चिट्ठी लिखी जाती है, वीडियो बनाने वालों को जो चिट्ठी लिखी जाती है, वो कहलाती है लेटर्स टू एडिटर, जो सामान्यतया किसी मुद्दे को लेकर होती है। हम लिखते हैं पत्रकार को चिट्ठी तो किसी एक मुद्दे को लेकर लिखते हैं कि आपने ऐसा ऐसा जो लिखा है आपने पत्र में, जानकारी गलत है, या हम लिखते हैं कि देश में जो ऐसा ऐसा हो रहा है, रायपुर में घटना हुई, इस पर आपने जो लिखा है उस पर मैं ये बात और बोलना चाहता हूँ। सो लेटर टू एडिटर इज समथिंग लाइक किसी काइंड ऑफ सजेशन ऑन सम इशू। इट्स ए काइंड ऑफ सम एडवाइस, सम सजेशन, आई वोंट से एडवाइस, सम सजेशन, सुझाव। सो नॉर्मली ये सुझाव के रूप में रहते हैं जो पत्र जो हम संपादकों को लिखते हैं। और चौथा है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, नौकरी के लिए। जैसा मैंने पूर्व में बताया, आवेदन भी लेटर की श्रेणी में आते हैं। और आवेदन किस लिए होते हैं? सामान्यतः नौकरी के लिए होते हैं। तो ये जानने के बाद कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक रफ आइडिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पत्र के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, क्योंकि पत्र की भी अपनी बॉडी होती है। बिजनेस लेटर को लिखने की तरीका अलग होता है और ऐसी ऑफिशियल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट लेटर। क्योंकि ये जो हम सब पढ़ रहे हैं उसके पीछे मकसद ये है कि आप सही तरीके से चिट्ठी लिखना सीखें। You should understand how to write to someone and what to write. कैसे लिखना और क्या लिखना, हर चीज़ की एक शैली होती है, एक कला होती है। चिट्ठी लिखना भी एक कला है। Writing letter is also an art. So now let us proceed further with different types of letters. जैसा मैंने बताया, the first category is of business letter, व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र की बॉडी क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड सेगमेंट ऑफ लेटर्स। सेगमेंट्स क्या हिस्से होते हैं? सेगमेंट मीन्स हिस्से। एक चिट्ठी खोले हम, व्यापारिक चिट्ठी, तो उसमें क्या क्रम रहता है, किस क्रम में क्या लिखा जाता है? देयर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ इट। सो इन बिजनेस लेटर द फर्स्ट थिंग दैट इज रिटन इज ऑन टॉप यू फाइंड द नेम ऑफ द सेंडर। चिट्ठी लिखने वाले का नाम और उसका पूरा पता। ऑन द टॉप लेफ्ट, नेम ऑफ द सेंडर एंड हिज एड्रेस। याद रखिएगा, इसमें कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं रहता। The national board, CBSE and all, they have disallowed this practice of putting a comma after name or full stop after the name and address. It's a big blunder that people make, and you lose marks.
यदि आपने ऐसा किया तो नंबर खोएंगे। दूसरा होता है उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद डेट आती है नीचे, याद रखेंगे डेट नीचे रहती है। फिर उसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी मतलब क्या होता है? जिसको एड्रेस किया गया है, जिसको भेजा जा रहा है, वह कहलाता है एड्रेसी। सो एड्रेसी का नाम और उसका पता, ये हुआ तीसरा हिस्सा उसके सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस लेटर। और ये भी जो लिखते हैं एड्रेस का नाम, एड्रेसी का नाम SEE, ये 2 लाइन का गैप देंगे। किसके बाद 2 लाइन का गैप? डेट के बाद। देयर हैज टू बी गैप ऑफ 2 लाइन, राइट? तो आपका 3 या 4 लाइन में एड्रेसी का नाम और उसका पता आया। उसके बाद अगली लाइन में आता है सैल्यूटेशन। इस पार्ट को बोलते हैं सैल्यूटेशन। व्हाट इज सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन मतलब किसी को जब हम संबोधित करते हैं तो हम डियर, मिस्टर, मिसेस, मेसर्स ये सब लिखते हैं। ये सैल्यूटेशन कहलाता है, संबोधन। किस शब्द से हम संबोधन कर रहे हैं? ये बना है शब्द टू सैल्यूट से। किससे हम सैल्यूट करते हैं उसके सैल्यूटेशन क्या वर्ड क्या है? यदि महिला हैं तो मिसेस या मिस, पुरुष हैं तो मिस्टर, थोड़ा सा निकटता दिखानी तो डियर, और यदि कंपनी को लिख रहे हैं तो मेसर्स। मेसर्स की स्पेलिंग क्या होती है? MESSRS, मेसर्स, फॉर द कंपनी। किसी कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं तो ये हो गया सैल्यूटेशन का भाग। और सैल्यूटेशन कौन सा भाग है? इस चिट्ठी का, बिजनेस लेटर का चौथा भाग होता है सैल्यूटेशन। हमने लिखा मिस्टर XYZ नाम, अगले जो है उसके बाद होती है चिट्ठी। जो चीज़ हमको लिखना है उसको वहाँ पर संक्षिप्त में लिखना। बिजनेस लेटर याद रखेंगे, दे आर ऑलवेज ब्रीफ, दे आर ऑलवेज टू द पॉइंट एंड दे आर ऑलवेज फॉर्मल। बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि बिजनेस लेटर में कोई निकटता नहीं बताई जाती, संबंधों की निकटता उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। सीरियस लेटर होता है बिजनेस लेटर, कैजुअल लेटर नहीं। बिजनेस लेटर को हल्का फुल्का नहीं लेते, उसकी भाषा बड़ी सीरियस रहनी चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से आधिकारिक भाषा। सो बिजनेस लेटर शुड बी टू द पॉइंट एंड ब्रीफ एंड फॉर्मल। दैट इज द 5th point to know about the content. So I start again from the beginning. You have first your own address, जो लिख रहा है उसका नाम और पता, thereafter the date of writing the letter, then leave 2 lines and you have the name of the person whom you are writing and his address. कई बार डेट को राइट में लिखते हैं, that's nothing wrong. Many a time the dates are written on the right top, that's fine. So next is, after that, complimentary closure. What is complimentary closure? Complimentary, देखिए complimentary की स्पेलिंग क्या है? COMPLI, COMPLE नहीं है, दोनों में अंतर है। I am talking about COMPLI, complimentary closure. Closure मतलब समापन। किस चीज़ से हम समापन करते हैं और जिससे समापन करते हैं उस पत्र का, वह कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो क्या है वो समापन के शब्द क्या होंगे? तो समापन के शब्दों में आता है योर्स फेथफुली। योर फेथफुली नहीं, योर ट्रूली नहीं, योर सिंसियरली नहीं, वो है योर्स, YOURS।
So yours truly, yours sincerely, yours faithfully. ये जो शब्द हैं, they are called complementary closure words, right? And this is the sixth part of the body of the letter, sixth segment of the body of the letter. पूरी चिट्ठी का वो छठवां भाग हम मान सकते हैं. And seventh and the last, after writing yours truly, yours faithfully, या yours sincerely, साइन होता है, हस्ताक्षर होते हैं. और चूंकि ये बिजनेस लेटर है, जिसने हस्ताक्षर किया है या जो लिख रहा है वह अपना पद भी लिखेगा. डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद, डेजिग्नेशन यानी पद. पोस्ट, जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति है उस पोस्ट का नाम जरूर लिखेगा अपने नाम के नीचे. Right? So this is how there are 7 segments to the business letter. This is about business letter. And now let us see all business letters one by one. There are many types of letters that you can see here. And there are plenty more at other places in your books, reference books, website and YouTube, etc., etc. But you find them one by one here. These are all business letters, and you will find them all that by and large मतलब मोटा मोटा, by and large the sequence is same, the segment is same, the order is same. The content size is also similar, because they have to be brief, they have to be to the point. And then the top starts with name of the person who is writing. Normally हम लोग ये नहीं करते. Many times what happens, we start with the name of the person whom we write the letter. जिसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं उससे स्टार्ट करते हैं और अंत में जहाँ मैंने दस्तखत किया वहाँ पे नीचे अपना पद लिख के पता लिखता हूँ. ये गलत है. यदि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ तो मेरा नाम, पद और पता सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर, ताकि चिट्ठी पाने वाला चिट्ठी खोलते ही ऊपर देखता है किसने लिखा. यदि उसके काम का है तो पढ़ेगा, नहीं काम का है तो संबंधित व्यक्ति को भेज देगा. सो व्हाई इज द नेम ऑन द टॉप? So that the person who receives the letter, who has been addressed that letter, he can make out immediately and find out who is the writer of the letter. Am I clear? So this is about business letter. Now the next one is official letters. What are the official letters? In official letters, we are normally dealing with the heads of different organizations. अलग अलग संस्थाओं के मुखियाओं को लगभग जो लिखा जाता है वो ऑफिशियल लेटर होता है. पहली बात, unlike business letter can be to any person in a company, in a factory or anything, but official letter is normally written to head of the company, head of the organization, head of the institution and so on, head of the department and so on. Normally, do not take it as a law, but normally. The second point about this official letter is, it is normally remedial in nature. Now remedial matlab, remedy means R-E-M-E-D-Y. Remedy means ilaj. Remedial in nature matlab, through this letter, the writer wishes to mention some problem for its treatment. इन ऑफिशियल लेटर में सामान्यतः कुछ समस्या लिखी जाती है उसके इलाज के लिए. इट्स ए रेमेडियल इन नेचर, रिमेंबर. जनरली, दो वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, वी विल कम अक्रॉस देम, बट देन जनरली यू अंडरस्टैंड दैट इज यूजुअली रिटन टू हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, समवन हु इज हेडिंग, एंड देन बेसिकली इट इज इन द नेम ऑफ रेमेडियल नेचर. When it comes to official letters, we can, just as business letters are divided into, I think 4 types that we divided business letter. Enquiry letter,
thereafter order cancellation and order letter. The third is letter regarding replies and so on. Official letters are also of two types, broadly speaking. Number one, government or private. Second is letter to educational institution. ये दोनों थोड़े अलग अलग हैं. पहला क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एंड दूसरा लेटर्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Two more points on letter writing regarding its segments. Segment means the parts of the letter writing. First is when you have salutation. Salutation means you understand the place where we address sir and so on and so forth. सर या मेसर्स या मिस या मिसेस ऐसा लिखते हैं जो वो सैल्यूटेशन कहलाता है. उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है. सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज सब्जेक्ट? विषय. सब्जेक्ट मतलब विषय. तो प्लीज नोट दैट just above salutation you have one additional space, additional line where subject of the letter is written. क्या रहेगा उसमें? किस विषय पर आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं उस विषय को 4, 5, 6 शब्दों में लिखना है, ताकि पढ़ने वाला जिसको हमने लेटर लिखा है वो सब्जेक्ट देख के समझ जाए कि किस विषय पर ये चिट्ठी लिखी गई है, और तब वो आगे बढ़ता है. So one is the subject. After salutation, the next thing is that you should need to know is application is also a letter. In application for jobs, you have to add one more thing, and that is the biodata. 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 What is biodata? Biodata is also called CV, curriculum vitae, जिसमें व्यक्ति का विवरण रहता है, उसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन रहता है. जन्म, पैदा कब हुआ, कहाँ बॉर्न हुआ, अनुभव, क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में और कुछ और ख़ास बात हो तो इसका विवरण जो कैंडिडेट भेजता है किसी को जॉब के लिए, उस विवरण को कहते हैं बायोडाटा या करिकुलम विटे. करिकुलम विटे, CV. सो एप्लीकेशन फॉर जॉब में वहाँ पर ये करिकुलम विटे या बायोडाटा को जोड़ना ज़रूरी है. एक अतिरिक्त शीट आपके कवरिंग लेटर के साथ रहेगी, और ऐसा ही सैल्यूटेशन के ऊपर हर तरह की चिट्ठी में सब्जेक्ट रहना आवश्यक है. सो दिस इज अबाउट योर लेटर्स, एंड यू कैन सी द ऑफिशियल लेटर्स ऑफ N टाइप्स. ऑफिशियल लेटर्स ऑफ N टाइप्स मीन्स सभी तरह के ऑफिशियल लेटर आप देख सकते हैं, जिसमें किसी में शिकायत है, किसी में अनुरोध है, किसी में कुछ मुद्दे को उठाया गया है, किसी में कुछ अन्य बातें हैं, आदि आदि आदि. तो इससे हमको कोई इतना ताल्लुकात नहीं है कंटेंट से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं. अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये जानने के बाद थोड़ा सा हम चलें नोट मेकिंग की ओर. व्हाट इज नोट मेकिंग? अनसीन पैसेज मतलब ऐसा पैराग्राफ जो पढ़ा नहीं गया, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ. तो हमने कोशिश की शुरू में कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हल किया जाए, कॉम्प्रिहेंशन से आए हुए प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, और उसके बाद अनसीन पैसेज को कैसे किया जाए. एक नोट्स भी आपके कोर्स में है, हाउ टू मेक नोट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोट? नोट का अर्थ क्या है?
एक तो होता है नोट यानी टिप्पणी, नीचे किसी जगह किसी डॉक्यूमेंट के नीचे अफसर लोग लिखते हैं नोट, और फिर उसके बाद कोलन या डैश लगाकर फिर कुछ बात लिखते हैं, वह तो टिप्पणी कहलाई। लेकिन यहाँ टिप्पणी से हमारा तात्पर्य नहीं है, पॉइंट नहीं है। बाय नोट आई मीन हाउ टू प्रिपेयर समरी। एक नोट क्या होता है, एक कल्पना करिए एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में सब कुछ है, कई ऐसी वाक्य भी हैं, ऐसी बातें भी हैं जो हमारे काम की नहीं है, जिसका कोई विशेष औचित्य नहीं है। नोट बनाते समय हमें काम की चीज को निकालना होता है और बेकाम चीज को छोड़ देना होता है। दूसरे शब्दों में अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग में अंतर यह है कि अनसीन पैसेज को सामान्यतया हम लोग उसके प्रश्नों को पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज को पढ़ के उसका हल करते हैं। बट इन द नोट्स we have to read the passage first. If you remember, I had told you earlier that unseen passage generally, in order to cut down on time, in order to make sure that we save time, we don't spend time in reading the whole unseen passage, which may be difficult in many ways. So reading, again reading, third time reading, just to solve few questions of about 12 marks, no point. So I had suggested that it be done afterward. You must first read the questions and then answer the note making. Read the passage, read the lines in the passage. But here when it comes to note making, in note making, यदि क्वेश्चन आता है तो पहले आपको पैसेज को पढ़ना होगा. You will have to read the passage first. After reading the passage, you will be able to answer something. तो नोट मेकिंग है क्या? जो पैराग्राफ है जैसा आप देख रहे हैं, उस पैराग्राफ को संक्षिप्तीकरण करना नोट मेकिंग कहलाता है. पैराग्राफ को संक्षिप्तीकरण करना, उसमें बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत से बिंदु लिखे हुए हैं. मेरे काम की जो बात है उस पैराग्राफ में, उसको मैं एक शॉर्ट में लिख दूं. सो व्हाट इज नोट मेकिंग? संक्षिप्तीकरण. हाउ डू वी डू दैट? सबसे पहले उसका एक शीर्षक हम देखते हैं कि क्या है, किस विषय पर है, किस मुद्दे पर है. दूसरा, 70-80 वर्ड में कोशिश करते हैं उसके बिंदुओं को लिख दें. उदाहरण के लिए ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस पैराग्राफ में 2-3 अलग अलग बिंदुओं पर बातें की गई हैं. तो जो दोनों तीनों बिंदु हैं, हर बिंदु पे जो 2-2 बातें हैं उसको नोट कर लिया. सो देयर आर अबाउट 6 पॉइंट्स ऑन 3 मेन पॉइंट्स. देयर आर 3 मेन पॉइंट्स. ईच मेन पॉइंट हैज अबाउट 2 सब पॉइंट्स. In other words, we can also say that you read the passage carefully, write down the topic and subtopic. Write down the topic and subtopics from that passage. What are the topics in that passage? किस बारे में बात कर रहा है ये पैसेज? कौन कौन सी बातों पे बात कर रहा है? और जिन बातों पे बात कर रहा है उन बातों पर क्या क्या बिंदु हैं उसको सब टॉपिक कहते हैं. So write down the topics, subtopics, that's one. Secondly, prepare a summary of about 60-70 lines on them. 60-70 लाइन का उस पैसेज, जो पैसेज है वो करीब 30 लाइन का होगा. 30 लाइन्स में about 400 वर्ड्स आते हैं. So 400 वर्ड्स को रिड्यूस करके करीब 70-80 लाइन में उसको लिखना है. You have to reduce it to about 80 words. Not 70-80 line, but 70-80 words. 70-80 words means about 8 to 10 lines. Not more than 10 lines should there be in the note.
short note. And then last thing you have to do is to look for the title of that passage. नोट मेकिंग में जो सवाल आता है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा इस पैसेज को पढ़ने के बाद write down the answers to the questions given below. And going by the past year's question papers or sample papers, you have roughly 3 types of questions. One is topics and subtopics mentioned. The second is write a summary of about 70-80 lines on them. And the last will be, please advise a title. Suggest a suitable title for this. So with this, the idea behind preparing note is, in future, after reading the passage, you don't have to spend time again and again in reading the whole passage again. You can just read the note and you will understand what all is said in the paragraph, in the passage. परीक्षा के लिए आप लोग क्या करते हैं? आंसर्स रहते हैं, उनके पॉइंट्स बनाते हैं, टू द पॉइंट, ब्रीफ पॉइंट. परीक्षा की तैयारी जब करते हैं तो यू प्रिपेयर शॉर्ट समरी ऑफ द आंसर. A good student always prepares a short summary of long answer. Write them to the point. जब आप पैराग्राफ किताब में पढ़ते हैं, when you read your own book, then each paragraph you must make some note. Each paragraph, what are the solid points? एक अंग्रेजी में मुहावरा है, to separate grain from the chaff, CHAFF. ग्रेन मने अनाज और chaff मने बुरादा. दूसरे शब्दों में नोट मेकिंग वह काम है जिसमें आप बुरादे को अनाज से, धान से अलग करते हैं. यानी काम की चीज़ को अलग करके बेकाम चीज़ को फेंक देते हैं, त्याग देते हैं. तो एक बार यदि आपने नोट मेकिंग कर लिया किसी पैराग्राफ में, तो आगे आपको बार बार पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं. नोट विल बी सफिशिएंट. टाइटल आप देख लेंगे, समझ जाएंगे ये पैराग्राफ किस पर है. टॉपिक, सब टॉपिक से आप समझ जाएंगे कौन कौन से बिंदुओं को इस पैसेज में छुआ है. और लास्ट समरी से आप समझ जाएंगे कि इसमें मूल रूप से क्या लिखा है. सो आई होप you have understood the note making now, and basic difference between note making and unseen passages. Unseen passage remains unseen till you have read the question. You have to read the question first to be a fast learner, to be a smart operator. यदि आपको स्मार्ट आंसर देना है, स्मार्ट तरीका अपनाना है जिसमें समय बचे, एनर्जी बचे और कम से कम नुकसान हो, so read the questions and then go to the unseen passage. But note making में you have to read the passage first and then answer the question based on that. और past examples में यही 2-3 बातें जिसमें टाइटल, टॉपिक, सब टॉपिक और 70-80 वर्ड्स में उसकी समरी. This is what it is asked about. You see all the notes here. Some examples are here of the noting. Different example. There cannot be one day trick. एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में हम नोट मेकिंग नहीं सीख सकते. लेकिन थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएं तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, और उसी जो चीज़ आपने संक्षिप्त में समझी क्या है उसी को निकाल के लिख देना नोट मेकिंग कहलाता. So you see the examples here of note making. One note on one topic, another note on another topic, and see the questions, how the questions are framed. Advertisement, note making, letter writing, notice, ये सब में आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से बने. What is the examiner wanting you to do? वो क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाता है कि एग्जामिनर आपको क्या करना चाह रहा है. If it is an advertisement, he will give the matter for advertisement, and you have to write it down according to the body that we discussed. If it's a letter, you have to do according to the segment that we have discussed, and if it's a notice,
likewise you have to do it, as is very clear. So here are some examples of advertisement. Again, you can see them. Similarly, examples of notice also here. There are plenty of examples, and one after another. You can also see the letters and different types of letters, both unofficial and official, business letter and official letters. And notes also, how to make note. So you have to practice this art. ये आपको कला का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा. ये सतत रूप से अभ्यास करने पर इसमें आपको परिपक्वता हासिल होगी, एंड दिस कैरीज गुड डील ऑफ मार्क्स. 20-30 नंबर के सवाल इसमें आते हैं, so it should help you in doing well. Let's see some display ads. Classified ads are very simple, as told to you. Now in display ad, you see here, you have few ads. Look at the designs. It doesn't have limitation of words. इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं है. शब्द साइज भी अलग अलग हैं, बॉर्डर बना हुआ है और कैची है. See the slogan given, hurry, HURRY, hurry. And then it writes 30% discounts and all. Now the moment you read the word hurry, your attention is drawn. And then in big font, it writes refrigerator, Samsung, and so on and so forth. Similarly, in the second one, the rounded letter, rounded word, Captain Pressure Cooker. That means this ad is about pressure cooker, and which company? Captain. Now see the style. Here again it's a different style of advertisement where point by point here is mentioned at the bottom by using the dots. And the last one at the bottom is Sujitha Garment. Very brief, but see the heading. Fresh stock arrival. Now the moment you read fresh stock arrival, you immediately get down to the next line where address, contact detail, etc. And so address, contact detail can be small, because if I am interested in these garments, I am bound to look down to search for address. So that is small. But what is big? Big size is Sujitha Garment. And so this is one set of example to tell you the different types of ads. See the educational ad here. Realize your dream. This is a catchy statement that the organization is making. Realize your dream. And by catching your attention, it is trying to make sure that you read it. And at the bottom, 3 lines above it, it writes clearly, easy, free, fee installments. These are the temptations. ये आपको लालच देने के लिए. तो जिस चीज़ से आपको लालच देना है, जिस चीज़ से आपका ध्यान खींचना है, उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उनको बड़े फॉन्ट साइज में भी लिख सकते हैं, उनको अलग तरीके से लिख सकते हैं. So this is display way. And look at the last one. टाइटल देखिए आप, उसका ऊपर शीर्षक देखिए, धूम मचाले. और ये धूम मचाले पूरी जगह लिखा हुआ है. आपका ध्यान पूरा वो धूम मचाले पर चला जाता है कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में. और फिर धीरे से वो लिखता है धमाल डीजे. डीजे के लिए है जो, व्हाट इज डीजे? डिस्कोथेक प्लेटफॉर्म जो रहता है, डीजे जो आप शादियों वगैरह में सुनते हैं, उसका अपना विज्ञापन है जिसमें उसने अपने तय धूम शब्द का उपयोग किया है, धूम मचाले जैसा कैची वर्ड दिया है इन ऑर्डर टू ड्रॉ आवर अटेंशन. और बॉटम में देखिए, कॉन्टैक्ट इज वेरी क्लियर.
ये कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार हम विज्ञापन देते हुए हम भूल जाते हैं कि एक नीचे कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, एंड वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल दैट द फोन नंबर गिवन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So these are the examples of display advertisement that we have. See the examples of notices of different kind. If you read the question carefully, you will find कि question के अंदर ही संक्षिप्त में, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसका संक्षिप्तीकरण ही नोटिस है. बाकी जो बॉडी है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि सबसे ऊपर आपको संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद आपको नोटिस शब्द लिखना है, फिर उसके बाद किस चीज़ के लिए नोटिस है वो लिखना है, कंटेंट किस बात के लिए है. तो देखिए ये बॉडी है, और फिर बची हुई चीज़ जो है उसको अपने तरीके से बॉक्स के अंदर लिख दिया है. सबसे नीचे नोटिस देने वाले का नाम और पता, ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी. किसने नोटिस दिया है, किसने नोटिस लगाया है, चस्पा किया है, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर. नाउ यू कैन सी हियर some of the notices, some of the types of notices. As I told you, there are n number of types. There are n types of notices, but let us just have a look at this. One is you are Pradeep Verma, captain of Indira House in your school and in Saraswati Vidyalaya, Durg, and you have found a blazer lying somewhere. So now you have to make one ad or one notice informing everyone. So see the content that on the top you have Saraswati Vidyalaya written, the full address, because who is the one who is making this notice. Second is notice word in capital. And then you have the purpose, found a blazer. Now from the word found a blazer, if somebody reads it, जिसका ब्लेजर गुमा है वो तुरंत पूरा पढ़ेगा, और जिसका नहीं गुमा है वो उसको पढ़ने के बाद अपना आगे बढ़ जाएगा, उसे ज़रूरत नहीं आगे पढ़ने की. He doesn't have to waste time in reading this. And then see the body, कहाँ मिला ब्लेजर, किस स्थिति में मिला, और लास्ट में किससे कांटेक्ट किया जाए. प्रदीप वर्मा से कांटेक्ट करें तो उसने अपना नाम लिख दिया है और तारीख बाजू में लिखी हुई कि किस तारीख का है, कितनी पुरानी घटना है. ये नोटिस कितने दिन तक टंगा रहेगा, कई दिन टंगा रहेगा. So this is the next one is you can see that's the notice about cultural event, and in cultural event you are Geeta Sehgal, cultural secretary of your school, and organize an inter-house singing competition as part of annual day celebration. अब इसको नोटिस बोर्ड में टांगना है so that you want to invite participant. See the content again, the top, the name of the school, Sunrise Higher Secondary School, then you have notice word out there, and then you have the very purpose, third line, as I said, inter-house singing competition. Then the content, and at the bottom, whom to contact. That means Geeta Sehgal, cultural secretary. So this is how the notices are made, and you can go on looking for words for notices. You have to have a real rich vocabulary. देखिए एक दिन में ये सब समझ में आ तो जाएगा, लेकिन इसको लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ शब्द हों, शब्द भंडार हों. So you have to practice the rich vocabulary. You have to practice the vocabulary. अंग्रेजी शब्दों का भंडार आपको बढ़ाना होगा. Next notice is about workshop, and that too very specifically clear, English workshop by DAV school. अब यदि मैं इस नोटिस को पढ़ूं तो इस नोटिस को पढ़ने से मुझे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि नो टाइम आई कैन मेक आउट व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू विद दिस नोटिस. यदि मुझे डिटेल जानना है कि वर्कशॉप कितने बजे है, किस कक्षा वालों के लिए है, कहाँ पर है, तो बाकायदा स्पष्ट है. देयर वुड बी 2 सेशंस एंड ऑफ 1 hour ऑफ दिस मच ड्यूरेशन, प्री लंच एंड पोस्ट सेशन, पोस्ट लंच सेशन. किसको कांटेक्ट करना है, मैंग का नाम लिखा हुआ है, और मैंग कौन है, सेक्रेटरी इंग्लिश क्लब. So things are very clear out here. At Daffodil International School, a 3-day long science exhibition it intends to organize. Foundation Day celebration के नाम से. And as a head girl,
A notice is to be displayed at different schools, at different levels. What is the circular? Again, the same thing. You will see that names are written, name of the place, the notice, thereafter the subject, then the body and the sender. So notice, I hope through all these examples, you should be better placed to understand how to write a notice. Here there are two types of examples. One is a tender notice by PWD, and as I told you, you should know the meaning of the word tender. Invites tender from contractors. कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगवा रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि टेंडर क्या है. दूसरे शब्दों में आपको शब्दों से वाकिफ होना जरूरी है. डेवलप करिए अपनी वोकैबुलरी. एंड हु इज सेंडिंग द टेंडर दिस नोटिस? चीफ इंजीनियर इज सेंडिंग दिस नोटिस. चीफ इंजीनियर आजमगढ़ यूपी, और तारीख दी हुई है, क्योंकि तारीख देने के पीछे मकसद ये है कि टेंडर को जमा करने की भी आखिरी तारीख इस टेंडर नोटिस में दी हुई है. तो किस तारीख को ये इशू हुआ ये नोटिस, आखिरी तारीख कौन सी बनेगी ये स्पष्ट हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज, नाउ यू रीड द वर्ड obituary. OBITUARY, obituary. Your grandfather expired. Write an obituary on behalf of your family to be published in all newspapers. शोक संदेश एक लिखें अपने परिवार की ओर से जो सभी पेपरों में जाए. Now read the obituary. और obituary की भाषा भी बड़ी स्टैंडर्ड होती है. इसको बहुत सोच के लिखना होता है क्योंकि एक शोक संदेश है, एक ऑफिशियल संदेश है. We regret to inform the sudden demise of so and so on this date. He was 87 years old. So you can see the whole content. पूरा उसमें डिस्कस. और लास्ट में लिखा है the funeral will take place on this. अब पेपर में हमने छाप दिया कि इनकी डेथ हुई है, तो पेपर पढ़ने पर इच्छा होगी जानने की संबंधित लोगों की कि इनका फ्यूनरल कब होगा. फ्यूनरल मतलब शव यात्रा. तो शव यात्रा कितने बजे और कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, ये मेंशन होना, ये बताना ज़रूरी हो जाता है. सो ऑबिचुरी इज़ ऑल्सो ए वेरी टेक्निकल थिंग, राइट. सो विद दिस डियर चिल्ड्रन, आवर दिस चैप्टर इज ओवर. हमारा ये एक अध्याय जो अनसीन पैसेज पे था, जो कॉम्प्रिहेंशन पे था, जो नोट मेकिंग पे था और समरी पे था. समरी अर्थात नोट मेकिंग है. नोटिस पे था, एडवर्टाइजमेंट के बारे में जिसमें बात हुई, ये आपका यहाँ समाप्त हुआ. और बड़े विस्तार से कोशिश की गई है कि आप इनके मीनिंग ही न जाने बल्कि इनको कैसे बनाना ये भी जाने. एंड आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आंसर अनसीन पैसेज, how to make note, how to make summary, how to write notice and also advertisement. तो इस प्रकार एक अच्छी एक्सरसाइज और बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं एक्सरसाइज के लिए. तो होप यू हैव अंडरस्टूड क्वाइट ए लॉट ऑफ इट एंड यू विल प्रैक्टिस इट एट होम. और ज़्यादा अभ्यास करें. जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको इन चीज़ों में महारत हासिल होगी, पकड़ हासिल होगी और यू विल परफॉर्म बेटर.